So let us continue from this last example. So let me start the recording of Google Meet also. Okay, so this is our last question. Okay, yes, anyone solve this example? किसी ने सॉल्व किया ये? Can you tell me your final answer? Anyone tried this? किया है कि नहीं आपने? Yes. Have you tried this example or not? बोलो yes or no. आपने ट्राई किया ही नहीं क्या? Okay. So here we have to find limit of this double integral over a triangle with the vertices 0, 1, 1, 1, 1, 2. Okay. So if this point is हाँ बोलो. सर -3/4 है क्या? Okay. Okay. Okay, I will tell you the exact answer. Okay, so I got one answer which is -3/4. Okay, let us see whether it is correct or not. Anyone else? Anyone else? Have you got answer other than this? किसने सॉल्व किया है? सर 0 है सर. 0? यस सर. 0 तो कभी नहीं आएगा. Why? सर वॉल्यूम है तो हाँ यस वॉल्यूम है ना. So you can see there is some volume ना. This volume is never 0. So मे भी निगेटिव आ सकता है कुछ साइन किया, मतलब आपके अगर लिमिट्स रिवर्स हो जाते हैं तो इन दैट केस मे बी यू विल गेट निगेटिव, बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एट देन आपको मैंने बोला है निगेटिव का मीनिंग क्या होता है, बस आपके लिमिट्स रिवर्स हो रहे हैं. बट दैट आंसर इज मतलब डायरेक्ट हम उसको रॉन्ग नहीं बोल सकते, बट स्टिल वी हैव टू चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट. बट 0 इज नेवर पॉसिबल. Okay, so double integral over r x square minus y square dx dy over a triangle. This is the diagram 0, 1, 1, 1, 1, 2, and okay, let me directly show you from PPT. Okay, so evaluate double integral dx dy over the triangle with the vertices this. Okay, so this is your region, है ना, 0, 1, 1, 1, 1, 2. So in this region, I think यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, सो ओके, बट इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से स्ट्रिप से सॉल्व करना है. एट देन वो इंटीग्रल आपको वो इंटीग्रेशन आपको प्रॉपरली यहाँ पे वहाँ पे सॉल्व करने हैं. ओके, सो लेट अस कंसिडर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन दिस रीजन. मैं जो सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, बट यू कैन ट्राई विद दी वर्टिकल स्ट्रिप ऑल्सो. ओके, सो लेट अस कंसिडर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन दिस गिवन रीजन. सो फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, यस, टेल मी द लिमिट्स एट द एंड पे क्या कैलकुलेट करना है? यस, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एट द एंड्स ऑफ दिस स्ट्रिप. एंड्स पे क्या कैलकुलेट करना है? लिमिट्स ऑफ व्हाट? एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिप वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ x. And then we have to move the strip from bottom to top, and where we have to calculate the limits of y. So remember this. So for this strip, okay, which I highlighted by a red color, at this point, okay, so on left end you will get this line. Okay, this line is what? Line OC. This line is what? AC. Sorry, line AC. And what is the equation of line AC? So equation of line AC, to calculate this we have to use कौन सा फॉर्मूला है वो? 2 point formula, correct? Okay, so to calculate equation of line AC we need to use 2 point formula. And what is that formula? X minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1. And if I put all these values here, A point has coordinate 0, 1, so this is my x1 y1 and this is my x2 y2. So here I will get x minus x1, that is 0, upon x2 minus x1. So x2 minus x1 is 1 minus 0. Please correct me if I am wrong. Y minus y1 is 1, and whole divided by y2, that is 2 minus 1.
and that gives me x is equal to y minus 1. So this is the equation of line AC. So the equation of line AC is x is equal to y minus 1. So what, and you can see the left end of this strip is lie on this line, है ना, the left end of the strip is lie on the line x is equal to y minus 1. So what is the left limit or what is the value of x at the left end? क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? Yes, y minus 1. Y minus 1. Oh, correct. And the right end is on the line. What is the equation of line BC? What is the equation of line BC? What is One equal to x is equal to? y is equal x is equal to 1. 1. हाँ, y equal to 1 है, x equal to 1. X equal to 1. X equal to 1. Okay, so this line is what, x is equal to 1. So now we have to move this strip, we have to cover this whole region. So we have to move this strip from bottom to top. When we are at bottom, what is the value of y at the bottom? 0. बॉटम मतलब ये लाइन ना, लाइन ए बी लाइन का इक्वेशन 1 क्या sir, है? 1. हाँ, ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है? दिस लाइन इज y इक्वल टू 1. ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू 1. ओके, सो एट बॉटम योर y इज इक्वल टू 1 एंड एट टॉप यू विल गेट ओनली सिंगल पॉइंट. ओके, एंड एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ y इज 2. 2. Okay, whether these limits are clear to everyone? ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पे ही सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज है. अभी भी अगर आपको ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर डिफिकल्टी होगी. ओके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इस पे देखने. ओके, आई थिंक इन लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन द लिमिट्स फॉर वर्टिकल स्ट्रिप आल्सो. You can try by this method also, you can try by this method also. Okay, I have ready-made solution of horizontal strip, so I will explain for this for horizontal strip. You can try for a vertical strip also and then check whether you will get the same answer or not. Correct? So okay, is this whether these limits are clear to everyone? सबको समझ में आ रहे हैं लिमिट्स? Yes, sir. कुछ डाउट्स है तो आप मुझे फिर से बोलो, मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ. बट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. आगे कैलकुलेशन आप कर लोगे, ओके, इंटीग्रेशन के रेगुलर जो कैलकुलेशन है, बट ये क्लियरली समझ में आना चाहिए. एंड नाउ वी कैन राइट दिस गिवन इंटीग्रल I इज इक्वल टू, कैन एनीवन टेल मी? वी हैव टू इंटीग्रेट फर्स्ट दिस फंक्शन, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? X. X, है ना. So in case of horizontal strip, your order is dx dy. So always remember this part. So we have to integrate this first with respect to x, where x vary from y minus 1 to 1, and then we integrate this with respect to y, and the limits of y are, bolo, y vary from 1 to 2. 1 to 2. Okay, now so our first aim is what? We have to integrate this function with respect to x. So what is the integration of this function with respect to x? What is the integration of this function with respect to x? So when we integrate with respect to X cubed by 3. हाँ, X cubed by 3 minus y square x. x, good. So this part is there. So we are at now this stage. Okay, so the integration of this what? X cubed by 3 minus xy square, है ना, minus xy square, and the limits of x are from y minus 1 to 1. Now just replace x by upper limit and x by lower limit. So then you will get, when I put x equal to 1, you will get this. Okay, and when I put x is equal to y minus 1, you will get this. Correct? And now we need to simplify this. It is not that much trivial. We need to simplify this. So here you will get by applying a minus b whole cube and all. And okay, नहीं किया है उन्होंने शायद, ठीक है, ऐसे रखा तो आप ऐसे रखो. Sorry, just me 1 minute. Let me just slide show में ऑफ कर देता हूँ पहले. Okay, and yeah, so for x equal to 1 you will get this, and for x is equal to y minus 1 you will get this. Okay, जितना simplification यहाँ पे हो रहा है, I think y square में simplification होगा, so just do that simplification. The remaining terms are as it is. Okay, so you will get
दिस y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 क्यूब. इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप इसको सॉल्व कर दे तो और टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो इट्स बेटर टू कीप दिस टर्म एज इट इज बिकॉज इसका इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. वी कैन इजीली फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म y माइनस 1 क्यूब विच इज y माइनस 1 raised to 4 upon 4. Okay, so no need to split this a minus b whole cube. You can keep this part as it is. And now you can directly put this integral on your calculator also, or you can try this integration manually. Then you will get your answer as minus 8 by 12. Okay, so it is up to you. So if you get here minus sign also, then since it is volume, see अब ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर आ रहा है आपको वैसे रखना है, साइन चेंज नहीं करना है. ठीक है, जो भी आपको आंसर आ रहा है वैसे आपको रखना है. बट अगर वहाँ पे क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आता है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करो, सो इफ यू वांट यू कैन कंसिडर दैट प्लस साइन. बट अभी एमसीक्यूज में क्या होगा, मतलब एमसीक्यूज में दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे. सो अगर निगेटिव ही ऑप्शन है तो आप निगेटिव पे ही टिक करो. ओके, अगर इसका पॉजिटिव ऑप्शन है तो आप पॉजिटिव पे टिक करो. दोनों ऑप्शंस कभी नहीं रहेंगे वहाँ पे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. ठीक है, सो दैट केयर वी विल टेक. तो इसलिए इट्स बेटर, तो मैं आपको ज़्यादा कुछ साइन कन्वेंशन में नहीं लेके जाने वाला. तो जो भी आपका आंसर आता है यू हैव टू कीप दैट आंसर एज इट इज. करेक्ट. ओके, एंड दैट बिकम माइनस 2/3. ठीक है, तो आप वर्टिकल स्ट्रिप से भी एक बार चेक करो कि आपको ये आंसर मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, तो आपको ये दोनों लिमिट्स फिर क्लियरली समझ में आ जाएंगे. ओके, प्लीज़ ट्राई दिस. मैंने ये कैलकुलेशन डायरेक्टली आपको बोला कि आप कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हो. ठीक है, नो नीड टू डू दिस कैलकुलेशन मैन्युअली. एंड ट्राई इट फॉर वर्टिकल स्ट्रिप आल्सो एंड चेक वेदर यू विल गेट द सेम आंसर और नॉट. ओके, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. एंड नाउ लेट मी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. ओके, सो फर्स्ट हमने क्या देखा था, लेट मी रिवाइज क्विकली. वी हैव स्टार्टेड विद द डबल इंटीग्रल विद लिमिट्स. करेक्ट, डबल इंटीग्रल विद लिमिट्स, फर्स्ट पॉइंट है ना. सो व्हेन लिमिट्स आर गिवन देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट्स ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर वी हैव टू जस्ट सॉल्व दैट इंटीग्रल. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट है ना. इफ इनर लिमिट्स आर इन x, योर ऑर्डर इज dy dx. इफ इनर लिमिट्स आर इन y, देन योर ऑर्डर इज dx dy. करेक्ट. नेक्स्ट, डबल इंटीग्रल without limits. So in this case limits are not given, we have given a region. Okay, so we have to draw that region. In that region it's our choice. Okay, we can take vertical strip also, we can take horizontal strip also. When we take vertical strip, in that case your order become dy dx. When we take the horizontal strip, in that case your order become dx dy. So it is totally your call. That you have to try that given integral either by order dy dx or either by order dx dy. और ये भी आपको कैसे देखना है, हाउ यू एंश्योर दैट कि वर्टिकल स्ट्रिप से इजी होगा या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इजी होगा. हाउ यू डिसाइड दिस, मैंने आपको एक कहीं पे ट्रिक दी थी. हाउ यू डिसाइड दिस, अभी तक तो मैंने डायरेक्टली आपको बोला कि इट्स बेटर टू गो विद dy dx. वर्टिकल स्ट्रिप से आप ज़्यादातर सॉल्व करो. बट अगर आपको प्रॉपर डिसीजन लेना ही है दोनों में से, तो कैसे आप डिसीजन लोगे? यस, एनीवन? हाउ यू डिसाइड कि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप से इजी होगा या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से इजी होगा? हाउ यू डिसाइड दैट पार्ट? यस, यस, आई नीड द सेम लॉजिक फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक. यस, एनीवन? आर यू देयर और नॉट? Again that network issue is there. क्या कहाँ तक एक्सप्लेन किया था मैंने? थर्ड डिसीजन कौन सा रहना है वो पूछ लिया. इसलिए कभी मैं इसको हाइड नहीं करता हूँ, तो उससे मुझे समझ में आ जाता है. हाँ, मुझे बोलो मेरा लास्ट पॉइंट क्या था? ये एक्सप्लेन, ये स्टार्ट किया था मैंने, करेक्ट? आगे? यस सर. हाँ, ये लिमिट्स का हो गया था पूरा. यस सर. ओके,
ये आंसर एक्सप्लेन किया था ना मैंने प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आई थिंक ये नहीं किया था, करेक्ट? No, sir. Okay, yeah. So let me again start. Okay, let me quickly revise what we have, which topic we have covered in this unit. We have started with the first topic, which is double integral with limit. Okay, double integral with limit. Okay, so in this topic, double integral with limits, so we just check the limits of inner integral. If limits of inner integral are in x, then we integrate first with respect to y and then x. So if limits of inner integral are in x, your order is dy dx. If limits of inner integral are in y, then your order is dx dy. Okay, that is our first part है ना. जहाँ पे लिमिट्स गिवन है वहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रॉपर या प्रॉपर भी नहीं, जो भी उसकी ऑर्डर है उसी ऑर्डर से आपको उसको बस सॉल्व करना है, करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स. ओके, विदाउट लिमिट्स में आप क्या करते हो? इन केस ऑफ विदाउट लिमिट्स वी हैव टू ड्रॉ दैट रीजन, and in that region either we have to consider vertical strip or horizontal strip. If we consider vertical strip, then your order is dy dx, and if we consider horizontal strip, then your order is dx dy. करेक्ट. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल we will go with the vertical strip. Okay, but now if I want to take a proper decision for that particular example, कि मुझे वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करने की, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करनी है, हाउ यू टेक दैट डिसीजन? दैट इज माय क्वेश्चन. हाउ यू टेक दैट डिसीजन? अगर आपको प्रॉपर ही वहाँ पे स्ट्रिप कंसिडर करनी है, सो इन दैट केस हाउ यू आइडेंटिफाई बाय विच स्ट्रिप यू हैव टू सॉल्व दैट गिवन एग्जाम्पल? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे? शायद मैंने एक्सप्लेन किया होगा, बट कैन एनीवन टेल मी दैट बाय योर थॉट? कि आपको क्या लग रहा है कि या ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? एज आई टोल्ड यू, बाय दिस स्ट्रिप ऑल्सो एंड बाय दिस स्ट्रिप ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर. दोनों का आंसर सेम ही आता है, बट दोनों में से कौन सी स्ट्रिप आपको यूज करनी है, दैट वी हैव टू डिसाइड. वही लॉजिक मुझे चाहिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी दैट पार्ट, हाउ वी डिसाइड दिस स्ट्रिप? Sir, if limits of inner integral are function of y, then order will be dx dy. Okay, but what in case of without limits? I'm talking in case of without limits. ठीक है, if limits are not given, तो पूरा आपके हाथ में होता है ना कि आपको उसको वर्टिकल स्ट्रिप से सॉल्व करना है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व करना है. वो डिसीजन आपके हाथ में होता है. अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में भी आप एज्यूम करो हियर वी डोंट नो दिस लिमिट्स. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ में आ रही है लिमिट्स कैसे आते हैं, ठीक है? तो हाँ, नाउ यू टेल मी, अब इस क्वेश्चन में कौन से ऑर्डर से या कौन से स्ट्रिप से जाना आपके लिए इजी होगा? दैट आंसर माय क्वेश्चन. क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सबको, बाद में आंसर पे जाते हैं. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि ये सपोज मेरा गिवन डबल इंटीग्रल है. ओके, आई डोंट नो द लिमिट्स, सो इन दैट केस मे बी आई हैव दैट गिवन रीजन, मेरे पास वो रीजन होगा. सो माय क्वेश्चन सर पहले हाँ, इस क्वेश्चन में पहले x से इंटीग्रेट करना. पहले x से इंटीग्रेट करना मतलब कौन से स्ट्रिप के बारे में बोल रहा हूं? पहले x से इंटीग्रेट करना मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो ये इजी होगा या पहले y से इंटीग्रेट करना इजी होगा? दैट इज माय क्वेश्चन. दोनों में हाँ, x से अदर. सर पहले y से इंटीग्रेट करना इजी होगा ना, डायरेक्टली वो कांस्टेंट हो जाएगा ये. Yes, sir. ओके, व्हाट अदर्स फेल? आई वांट ओपिनियन फ्रॉम ऑल. ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन मुझे चाहिए. एक का आंसर था dx dy, x1 का आंसर था dy dx, क्योंकि उसमें कांस्टेंट ही रहेगा और जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा. एनी अदर? dy dx. ओके, dy dx. तो यही एक थॉट इसमें इंपॉर्टेंट है. ओके, कि आपको पहले ये देखना है कि क्विकली कौन सा इंटीग्रल आपको सॉल्व हो रहा है, ठीक है? या मीन्स व्हाट, व्हेन यू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, यू विल गेट मोर वेरिएबल. ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं ना, e⁻² भी आपका वेरिएबल हो रहा है उस केस में. बट व्हेन वी इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, यू डोंट हैव एनी वेरिएबल.
मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे जब आप x से इंटीग्रेट करते हो, ओके, तो वहाँ या जब आप x से इंटीग्रेट करते हो या जब आप y से इंटीग्रेट करते हो, यू वांट लेस वेरिएबल्स। जितने कम वेरिएबल वहाँ पर रहेंगे उतना आपके लिए इजी होगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है, और यही डिसीजन मतलब ये जो पार्ट है, यही लॉजिक यूज करके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नेक्स्ट टॉपिक विच इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। ये तो समझ में आ रहा है कि ऑर्डर कैसे डिसाइड करनी है। अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये थॉट दे सकते हो कि यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप से जाना इजी था या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से जाना इजी था, ठीक है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा या जल्दी वो इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगा, यू कैन गो विद दैट ऑर्डर, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सबको? पहला पार्ट, हाउ टू डिसाइड। Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ही क्या है? यहाँ पे आपको क्या करना है इन दिस example, okay, we have to change order of this given integral, and then by changing its order we have to evaluate this integral, okay. Means what? Let me explain in detail. पहले आप मुझे ये बोलो, what is the order of this given integral? What is the dx dy. given integral? Correct. Since inner limits are in y, so your order is dx dy. क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द इंटीग्रल बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर से तो सॉल्व नहीं करना है आपको, जो गिवन ऑर्डर है उस ऑर्डर से तो सॉल्व नहीं करना है। और क्यों नहीं करना आपको रीजन भी पता है, क्योंकि वो उस ऑर्डर से जाना डिफिकल्ट है, बिकॉज यू कैनॉट फाइंड दिस, मतलब यू कैनॉट सॉल्व दिस इंटीग्रल। ये इंटीग्रल सॉल्व होगा नहीं आपसे, ठीक है। देयर आर मतलब ये 4y to y, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो विद दिस वे, है ना, क्योंकि ये सॉल्व होगा ही नहीं आपको। e raised to x स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैसे भी आपको पता डिफिकल्ट है, हाँ। तो इसलिए वैसे भी आपको dx dy ऑर्डर से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए आपको यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके इसको सॉल्व करना है। बट मैंने रेडीमेड दिया है क्वेश्चन में। जनरली आपको ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इवैल्यूएट दिस। चलो अभी ऑनलाइन में तो नहीं आएगा, बट अगर थ्योरी में मुझे अगर क्वेश्चन देना तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे सकता हूँ इवैल्यूएट, ठीक है। तो उस केस में डायरेक्टली आप इस ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हो, बाय इंटीग्रेटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू dx एंड देन विद रिस्पेक्ट टू dy। दैट इज ऑलवेज, मतलब वो ऑप्शन आपके पास ऑलवेज रहेगा, ठीक है। बट देयर आर सम एग्जांपल्स इन विच इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय इट्स डिफॉल्ट ऑर्डर। जैसे यहाँ पे इसकी जो डिफॉल्ट ऑर्डर है वो क्या है? dx dy। बस बट इस ऑर्डर से सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना होगा? आई विल चेंज दिस ऑर्डर। ये जो dx dy का क्वेश्चन है, मैं इसको dy dx में कन्वर्ट करने वाला हूँ, देन आई विल सॉल्व दैट इंटीग्रल। टॉपिक का लॉजिक तो समझ में आ रहा है कि इस टॉपिक में करना क्या है बेसिकली? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देयर आर सम इंटीग्रल्स इन विच it is difficult to evaluate or it is difficult to find value of that integral using its default order। जो उसकी default order है उससे वो integral solve करना difficult हो जाता है या possible ही नहीं होता। ऐसे भी कुछ questions है आपको, and in that case what we have to do? In that case we have to change its order। मतलब for example अगर वो vertical strip का, जैसे यहाँ पे ये dx dy का क्वेश्चन है तो dy dx से सॉल्व करो, अगर वो dy dx का क्वेश्चन है तो dx dy से सॉल्व करो, बट ऑर्डर चेंज करके उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अभी करना कैसे वो मुझे एक्सप्लेन करना है। अभी आपको इसका रीजन तो समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज क्यों करनी है, क्योंकि डिफॉल्ट ऑर्डर से वो सॉल्व होगा नहीं, है ना। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू चेंज दिस ऑर्डर, ओके। एंड यही पार्ट आपको एमसीक्यू में आने वाला है, उसके आगे इवैल्यूएट का पार्ट नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट ऑर्डर चेंज करने के बाद आपको एमसीक्यू में आ सकता है। तो मतलब ऑर्डर चेंज करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? यस, ऑर्डर चेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? लिमिट चेंज कर लो भाई। नहीं, अगर मुझे इस इंटीग्रल की ऑर्डर चेंज करनी है तो आपको क्या चाहिए? वहाँ पे आपको क्या चाहिए? फर्स्ट यू नीड दैट रीजन तो आपको चाहिए ना, रीजन के बाद ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर आपको वो एक्चुअल रीजन समझ में आता है उसके बाद ही आप उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके यू कैन चेंज दैट ऑर्डर। क्लियर है? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑर्डर चेंज करनी है या अगर आपको उसके लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं तो पहले वो आपको रीजन ड्रॉ करना होगा, ठीक है। नाउ
टेल मी व्हाट इज रीजन ऑफ दिस गिवन एग्जाम्पल. बोलो, आप बोलो कि आपको, कैन यू टेल मी रीजन फॉर दिस गिवन एग्जाम्पल और फॉर दिस गिवन डबल इंटीग्रल. बोलो, इस क्वेश्चन में क्या रीजन, कौन सा रीजन है आपके पास? हाँ, वाई चे लिमिट्स से 0 to 1 कंसीडर करेगा. सर एम वाई का. ओके ओके ओके, मैं एक अल्टरनेटिव वे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, इस इंटीग्रल की, डबल इंटीग्रल की ऑर्डर क्या है? dx dy. अगर इस इंटीग्रल की ऑर्डर dx dy है, तो जब ये लिमिट्स उनको मिल रहे थे, ओके, ये जो लिमिट्स यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, ये कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करके कैलकुलेट किए थे? फिर से सुनो, यहाँ पे ये जो गिवन डबल इंटीग्रल, हाँ, इसकी ऑर्डर है dx dy. तो ये जो रेडीमेड लिमिट्स आपके पास गिवन है, ये लिमिट्स उन्होंने कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करके कैलकुलेट किए थे? हाँ, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ओके. सो नाउ कैन यू टेल मी लिमिट्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. यहाँ पे मुझे बोला x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मुझे बोला x की वैल्यू क्या है, एट बॉटम क्या है एंड एट टॉप क्या है. कैन यू टेल मी दिस? हाँ, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू एट लेफ्ट हैंड? क्या होगा ये कंपल्सरी? अरे हाँ, 4 है ना. मतलब अभी आप रिवर्स जा रहे हो. प्रीवियस क्वेश्चन में मैं स्ट्रिप से यहाँ पे लिखता था ना, स्ट्रिप से मैं लिमिट्स लिखता था. अभी लिमिट से स्ट्रिप, मतलब लिमिट से आपको इंटीग्रल के लिमिट से आपको स्ट्रिप के लिमिट्स लिखने. ओके, 4y2 y, व्हाट इज एट बॉटम 0 एंड व्हाट इज एट टॉप 1. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर. यस. तो मैंने क्या किया है, जो गिवन इंटीग्रल था उसकी जो ऑर्डर थी, ओके, फ्रॉम दैट ऑर्डर मुझे ये समझ में आता है कि वहाँ पे उन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर की होगी या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर की होगी. तो वो कंसिडर करके मैंने उसके बस लिमिट्स यहाँ पे कंसिडर की है. नाउ आई कैन ड्रॉ माई रीजन. अभी यहाँ से मैं अपना रीजन ड्रॉ कर सकता हूँ. सो आई वॉन्ट अ रीजन, ओके, इन विच ऑन लेफ्ट हैंड साइड you will have x is equal to 4y, on right hand side you will have x is equal to y, at bottom you will have y equal to 0 and at top you will have y equal to 1. तो ये सारे लाइंस बस ड्रॉ करो और फिर देखते हैं रीजन अपना क्या है. तो मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस. 1 by 1 एक एक ड्रॉ करता हूँ. x equal to y, लेट मी टेक अनदर कलर. x equal to y, प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. यही लाइन होगी, ठीक है. हाँ, दिस इज माई x इक्वल टू y. एक पार्ट मैंने ड्रॉ किया. नेक्स्ट y इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस ना. देन y इक्वल टू 1. y इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट? ये लाइन करेक्ट है. अब ये पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज दिस पॉइंट? 1,1. ओके, नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है? ये भी हो गया. हाँ, नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है? 4y. ओके, हाउ यू ड्रॉ दिस लाइन? x इक्वल टू 4y. हाउ यू ड्रॉ दिस लाइन? x इक्वल टू 4y. बोलो. व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो ये लाइन कहाँ से जा रही है? जस्ट टेल मी 2 पॉइंट्स. 2 ही पॉइंट्स मुझे चाहिए, है ना. सो 0 0 एक पॉइंट है. कैन यू टेल मी 1 पॉइंट? व्हेन आई पुट y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, है ना. ये एक पॉइंट है. थोड़ा डायग्राम का इशू होगा, बट जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी जस्ट. हाँ, अभी so this line x is equal to 4y passing through a point 0 0 and 4 1. 0 0 and 4 1. 4 1 पॉइंट कहाँ पे है? कुछ तो मिस्टेक हो रही है ऐसा लग रहा है. x is equal to 4, ये तो आगे जाएगा ना. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में देखते क्या. ये एज्यूम करो दिस पॉइंट इज व्हाट?
4,1. हाँ, दिस पॉइंट इज 4 एंड y इज इक्वल टू 1. ओके, अभी देखते हैं रीजन अपना क्या है. ठीक है, एंड दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 4y. सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड, भाई तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लमेटिक ही लग रहा है कुछ तो. ऑन लेफ्ट हैंड साइड x इज इक्वल टू 4y, सो दिस मस्ट बी द लेफ्ट साइड. ऑन राइट हैंड साइड x इज इक्वल टू y. ये ऊपर जाना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है? Let me draw this region again. कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ तो हो रहा है, हम मिस्टेक कर रहे हैं या इसमें मिस्टेक नहीं होगी. लेट मी डू इट अगेन, या फिर बाद में मुझे लिमिट्स भी चेक करने होंगे. इनर लिमिट्स आर इन y, सो दिस आर द लिमिट्स ऑफ x. सो मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू y, देन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1. मुझे ये चारों लाइन्स ड्रॉ करने हैं. लेट मी जस्ट डू इट क्विकली. ओके, दिस इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 1/4x, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू x. सो y इक्वल टू x इज द लाइन whose स्लोप इज 1, है ना. दिस लाइन इज y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 1/4, है ना. तो स्लोप इसका क्या है, 1 से कम हो रहा है, तो ये लाइन होगी, है ना. नहीं नहीं, स्लोप यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो ये लाइन नहीं होगी. जस्ट 1 मिनट. करेक्ट ही था फिर वो. यहाँ पे स्लोप 1 है, इसके नीचे स्लोप आपका कम हो रहा है ना, 1 से नीचे आ रहा है, तो ये लाइन इसके नीचे ही रहेगी. आधीचं करेक्ट होतं ना सर? हाँ, आधीचं डायग्राम पण करेक्ट होतं. करेक्टच होतं ते. हां. ओके, बघूया आपण काय मिस्टेक होती है. y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1. y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन, एंड y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस रैंडमली. बट इसमें रीजन है ना अनबाउंडेड हो रहा है, मे बी होगा, है ना, मे बी होगा. व्हाट इज दिस पॉइंट, देखता हूँ मैं. हाँ, ये पॉइंट तो क्या है, 1 1 है. व्हाट इज दिस पॉइंट, 4,1. 4,1. अभी जो रीजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे इमीडिएटली अनबाउंडेड का नहीं लेना था. x इज इक्वल टू 4y, तो ये लाइन x इज इक्वल टू y, ठीक है, इन बिटवीन आ रहा है, तो थोड़ा यही है ना, ठीक है. बट ये लिमिट्स रिवर्स हो रहे, मतलब ये प्रॉपर नहीं आ रहा है. ये इनका इंटीग्रेशन, इनका आंसर निगेटिव ही आएगा. आपको पता चल रहा है ना कि लेफ्ट साइड में एक्चुअली मुझे क्या चाहिए था, y इक्वल टू x, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. एक्चुअली लेफ्ट हैंड पे y इक्वल टू x चाहिए था, और ये फिर मतलब ये नीचे चाहिए था, ये ऊपर चाहिए था. दिस इज व्हाट आई वांट. बट ठीक है, x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू 4y, दिस आर द एंड्स, एंड देन आई हैव टू मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1. ओके, तो ये रीजन है, ठीक है. मैं अभी अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. ध्यान दो, चलो. सो करेक्ट ही है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है, बट द लिमिट्स आर नॉट प्रॉपर, दैट द लिमिट्स विल गिव यू नेगेटिव आंसर. ठीक है, बट आपको जो भी आंसर आता है आपको लिखना है. ओके, नेगेटिव आने दो, पॉजिटिव आने दो, उसमें कुछ ज़्यादा आपको थॉट नहीं देना है. ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट वन मोर टाइम. ओके, हाँ. सो अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ फोकस हियर. मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी. सो दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस. ओके, and now let us draw one by one. So first line क्या, x is equal to 4y and x is equal to y. Let me draw these two lines. x equal to y is a line which passing through a point, मतलब it's a central line है ना, passing through point 0 0 and 1 1, correct. So this line is x is equal to y. नेक्स्ट लाइन इज, अभी ये मैं कैसे ड्रॉ किया था आपको बोलता हूँ. ये अगर मैं मतलब स्लोप से भी आप जाते हो, आप पॉइंट से जा सकते हो, तो मैं बेटर आपको पॉइंट से एक्सप्लेन करता. ज़्यादा स्टूडेंट को नहीं पता होगा. यहाँ पे बस 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करो. सो व्हेन आई पुट y, दिस इज x, दिस इज y, नहीं आपकी रेगुलर प्रोसेस है ना. व्हेन आई पुट y इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0. व्हेन आई पुट y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4. तो बस
जस्ट ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स. सो x इक्वल टू 4 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे कहीं पे होगा. सो ये लाइन ऐसे ऊपर ही आएगी. ठीक है. एंड दिस लाइन इज x इज इक्वल टू 4y. एंड नाउ जस्ट ड्रॉ अ लाइन y इज इक्वल टू 1. मैंने ड्रॉ ही किया ना फिर से. हम उल्टा करना खाली खाली नीचे लाना था ना उसको. सो x इज इक्वल टू 4 मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा एंड 1. सो दैट लाइन इज दिस. दिस बिकम x इज इक्वल टू 4y. ओके, बट इंस्टेड ऑफ दिस स्लोप से भी आप जा सकते हो. ओके, वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है. y इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 1/4x. ओके, ये मैं कैसे देखता हूँ आपको मैं बोलता हूँ. इफ इट हेल्प यू can go with this approach also. y इक्वल टू x, इस लाइन का स्लोप क्या है 1. और आपको क्या पता है जब आप मतलब इसके ऊपर ये जो भी लाइन्स है, ऊपर के जो भी लाइन्स है, इनका स्लोप क्या आने वाला है ग्रेटर दैन 1, क्योंकि हाईएस्ट स्लोप यहाँ पे इन्फिनिटी होता है. इफ दिस स्लोप इज 1, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आने वाला है. तो इसके ऊपर के जो लाइन है उनका स्लोप दैट स्लोप इज ग्रेटर दैन 1. और इसके नीचे के जो लाइन्स है, ओके, जब आप नीचे आते हो यह भी होगा 0.9 समथिंग समथिंग 0.8 और यहाँ पे 0 आता है. तो ये जो लाइन है y इक्वल टू x, इसके नीचे जो लाइन्स आने वाले उनका स्लोप लेस दैन 1 होगा. तो यहाँ पे जो आपकी लाइन है y इक्वल टू 1/4x, ओके, ये 1/4 इज लेस दैन 1, तो ये लाइन नीचे ही आएगी. इज दिस क्लियर? ये सेकंड अप्रोच समझ में आ रहा है. तो नो नीड टू प्लॉट दिस पॉइंट्स आल्सो. ये पॉइंट्स भी प्लॉट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये भी आप याद रखो. इससे क्विकली डायग्राम आप आगे प्लॉट कर सकते हो. ओके, जस्ट फ्रॉम अ स्लोप यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दैट लाइन. ठीक है, तो आप देखो कि आपको कौन सा वे इजी जा रहा है. इट डिपेंड ऑन यू. अभी चलो ज़्यादा टाइम हो गया इसमें. हाँ, सो दिस इज माई सेकंड लाइन एंड नाउ लेट मी ड्रॉ द लास्ट लाइन विच इज y इक्वल टू 0. ये ट्रिवल था एंड y इक्वल टू 1. दिस इज माई लाइन y इक्वल टू 1. ओके, y इक्वल टू 1. एंड नाउ लेट अस आइडेंटिफाई अवर रीजन. अभी रीजन इसके आगे कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, डायग्राम का पार्ट समझ में आ रहा है सबको? इसमें कुछ डाउट्स है? रेगुलर ग्राफ है, आप वो प्रॉपर ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट करके जा सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट विद दिस. बट इतना कुछ करने की जरूरत है, हमें रैंडम मतलब अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करना है. ओके, इज दिस क्लियर? ग्राफ में कुछ डाउट्स है पहले वो बोलो. हाँ, एंड नाउ क्लियर सर. हाँ, दिस पॉइंट इज 1,1, दिस पॉइंट इज 4,1. ठीक है, नाउ अभी आपको आपका ना रीजन आइडेंटिफाई करना है. सो इन अ रीजन R, on left hand side you will have x is equal to 4y, on right hand side you will have x is equal to y. तो ऐसा एक रीजन आइडेंटिफाई करो जो इन दो कर्व्स में आ रहा है, x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू 4y के बिटवीन आ रहा है. तो आप देखो ये लाइन है आपकी x इज इक्वल टू y, दिस लाइन इज x इक्वल टू y, दिस लाइन इज x इक्वल टू 4y. तो इन बिटवीन ही आपको रीजन चाहिए. ठीक है, तो ये रीजन होगा इन बिटवीन ऑफ दिस टू लाइन. आपको एरो से थोड़ा बहुत दिखाई देगा. ठीक है, सो ये इन बिटवीन का ही रीजन आपको मिल जाएगा. बट नेक्स्ट क्या करना है, दैट रीजन दैट रीजन इज बाउंडेड फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1. सो y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन, ये पॉइंट है ना, या ये जो लाइन है वो आपको वो रीजन बाउंड करना है y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू 1 तक. सो दिस इज योर फाइनल रीजन. आप चाहो तो फिर से एक बार चेक करो, जो मैंने हाईलाइट किया वही आपका रीजन है कि नहीं. इस रीजन में व्हेन यू टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, व्हेन यू टेक अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन दिस रीजन, हाँ, लेफ्ट एंड पे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू वाई. करेक्ट, अब ये थोड़ा रिवर्स है बट यू कैन मैनेज दैट. राइट एंड पे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4y. सो वन एंड इज एट x इक्वल टू 4y, वन एंड इज एट x इक्वल टू y and x इक्वल टू 4y. And when you move this strip from bottom to top, at bottom you will get y equal to 0, at top you will get y equal to 1. करेक्ट है? अभी आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आपने रीजन कैसे आइडेंटिफाई किया, समझ में आ रहा है सबको? यस सर. ओके, नाउ इन दैट रीजन टू चेंज इट्स ऑर्डर, इन दैट रीजन वी हैव टू कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का क्वेश्चन था, आपको इसकी ऑर्डर चेंज करनी है. सो इन दैट रीजन वी हैव टू कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप. मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया वो भी डिफिकल्ट दिया है, जिसमें इतने सारे केसेस आ रहे हैं. नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस वर्टिकल स्ट्रिप. ओके, लेट मी जस्ट इरेज फ्यू पार्ट्स. चलो जाने दो, मैं ले लेता हूँ ये इन डिटेल में, बट आई डोंट वांट टू टेक दिस एग्जांपल एज इस पहले एग्जांपल में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. नाउ इफ आई कंसिडर दिस वर्टिकल स्ट्रिप सेपरेटली हियर,
Can you tell me limits of this vertical strip? For vertical strip, I want y at the ends. Then we have to move this strip from left to right, where we have to calculate x. Tell me quickly now. बोलो. हाँ, y की वैल्यू बॉटम पे क्या है? 0. अरे वर्टिकल स्ट्रिप के लिए अच्छा, x by 4. x by 4. x by 4. ओके. y की वैल्यू टॉप पे क्या है? x equal to y. सो x. ओके. बट ये जो टॉप की वैल्यू है ये पूरे रीजन में सेम है क्या? नो सर. तो ये प्रॉब्लम, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा था जिसमें अभी आप अगर यहाँ पे चेक करते हो ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसमें ना डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ, हाँ. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, आपका लिमिट क्या है? व्हाट इज योर लिमिट? x इज इक्वल टू y. बट इसके आगे, इस पॉइंट के आगे, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी दिस और नॉट, इसके आगे आपका लिमिट चेंज हो रहा है. मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया. ठीक है. सो कैन यू कवर दिस होल रीजन बाय दिस स्ट्रिप? एक सिंगल स्ट्रिप से कवर होगा क्या वो रीजन? नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिप के लिमिट्स इक्वल आने चाहिए पूरे रीजन में. तो यहाँ पे अगर मैं y इक्वल टू x लेता हूं तो यहां से मेरा कौन सा रीजन कवर होगा? इस स्ट्रिप से कौन सा रीजन कवर होगा? ओनली दिस लेफ्ट हैंड. ये ही R1 रीजन कवर होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. क्योंकि उसके आगे स्ट्रिप जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि लोअर एंड क्या है? y इक्वल टू x बाई 4. अपर एंड क्या है? y इक्वल टू x. बट इसके आगे आपकी लाइन अलग है. इसके आगे लाइन क्या है? ये y इक्वल टू 1 लाइन है. प्रॉब्लम समझ में आ रही है सबको? Yes sir. Okay, so because of this upper limit, you can't move this strip in this second region. ये जो second region है, let me highlight by another color. ठीक है. ये जो second region है ना, जो मैंने yellow color से थोड़ा बहुत highlight किया है, ये cover होगा नहीं आपका, क्योंकि इस region में upper limit है ना, उसकी value क्या है? y equal to 1. That is the problem. ओके. तो इसलिए मुझे अभी क्या करना होगा? मुझे इस प्रॉब्लम को दो रीजन में डिवाइड करना होगा. Let us call it as one region to be R1 and let us call the second region as my R2. तो ये जो second region आपका होगा that is my region R2 and उसके लिए मुझे अलग से एक और vertical strip consider करनी होगी. ओके. नाउ लेट अस फिनिश फॉर अ फर्स्ट रीजन, R1 रीजन के लिए. तो अभी अपर लिमिट का तो पार्ट क्लियर हो गया. ओके. अपर लिमिट यहाँ पे ही था, इसलिए मैंने इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया था. ये मैंने क्यों डिवाइड किया? बिकॉज ऑफ अपर लिमिट ओनली. यही प्रॉब्लम आपको आगे भी आने वाला है. I will take one more example on the same part. Now, what is at the left? तो लेफ्ट होगा ये पॉइंट, तो वहां पे x की वैल्यू क्या है? 0. Now tell me what is at the right? X equal to 1. x is equal to 1. ये चेंज आपको समझ में आना चाहिए कि अभी बिकॉज ऑफ दिस अपर लिमिट यू कैन मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 ओनली. इस लाइन पे ही आप आ सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते हो बिकॉज ऑफ द अपर लिमिट. So this become the limits of your region R1. Now tell me the limits of region R2. तो उस रीजन में भी आपको फिर से एक बार एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करनी है एंड सेम कैलकुलेशन फॉलो करना है. कैलकुलेट y here, move this strip from left to right and here we need to calculate x. Don't worry, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले. बोलो. So what is at bottom? बॉटम ये लाइन है, which is कौन सी लाइन है ये? y equal to x by 4. बट टॉप पे अभी क्या होगा? Y equal to 1. Very good. Y equal to 1. We have to move the strip from left. X equal to 1 to 1 to 4. x is equal to 4. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हो तो आपका रीजन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. When you take a vertical strip in this case, your region is divided into two parts. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ. ओके. आई विल नॉट आस्क, मतलब सॉल्व करने के लिए नहीं पूछने वाला हूँ मैं. एंड वैसे भी आपको मतलब चेंज द ऑर्डर, इतना ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. ओके. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सॉल्व, या आपको मैं पीपीटी में दे देता हूँ, आज समझ में आएगा. बहुत लेंथी हो रहा है ये. ठीक है. चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल. ओके. नाउ लेट मी राइट अगेन. आपका गिवन इंटीग्रल था 0 to 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम x to infinity, सॉरी 4y to y e raised to x square
आपने तो ये जो था ये आपका डिवाइड एक्स ऑर्डर का था, इसको आपने चेंज किया है, ओके, दो रीजन में चेंज किया है। जब आप दो रीजन में चेंज करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन R1 ऑफ दिस सेम फंक्शन प्लस रीजन R2 ऑफ दिस सेम फंक्शन। आर यू गेटिंग दिस? जितने रीजन में डिवाइड होगा उतने पार्ट आपको उसको ऐड करते जाना है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे दो रीजन आ रहे थे, इसलिए मेरा डबल इंटीग्रल भी दो रीजन में या दो इंटीग्रल में डिवाइड हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, and now just write down the limits of R1 region, limits of R2 region, that completes your problem. So R1 region में क्या हो रहा है, y vary from x by 4 to x, y vary from x by 4 to x, है ना, of this function पहले मुझे y से इंटीग्रेट करना है, then x से, and your x vary from 0 to 1, x vary from 0 to 1, ये हो गया फर्स्ट रीजन का। सेकंड रीजन में y vary from, you can see here, x by 4 to 1, सेम फंक्शन, पहले y से इंटीग्रेट करना है, एंड देन x vary from 1 to 4 हो गया। अब इसके आगे ये सॉल्व करो, ओके, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है इसके आगे का इंटीग्रेशन, बट इतना कुछ आपको नहीं आने वाला, ये 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सो एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो विल स्किप दैट नेक्स्ट पार्ट। इट्स मतलब सॉल्विंग इंटीग्रल का पार्ट है, वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ऑर्डर पे आपको ज़्यादा वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इसके आगे बस सॉल्व करोगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो हियर वी सॉल्व दिस एग्जाम्पल, है ना, हमने ये जो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया, बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर, ठीक है। एक और लेता हूँ मैं, अभी ये सिंपल लेता हूँ जो मुझे एक्चुअली लेना था, एंड फिर ये सेम लॉजिक यूज़ करके आपको उसको सॉल्व करना है। सो आई थिंक 10-20 हो रहा है, क्या करूँ, कैन आई टेक दिस एग्जाम्पल? चलो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, सिंपल ही ले लेते हैं, विल डू दिस एंड देन विल स्टॉप। आई हैव टू एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स नाउ, आई डोंट हैव अ चॉइस, ओके। हाँ बोलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल? क्विकली हो जाएगा ये। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन इंटीग्रल? इनर लिमिट्स आर इन एक्स, सो व्हाट इज द ऑर्डर? डिवाइड एक्स। वेरी गुड, डिवाइड एक्स। तो ये जो लिमिट्स थे, है ना, जो गिवन लिमिट्स है, वो कौन से स्ट्रिप से मिल रहे थे उनको? कौन से स्ट्रिप से मिल रहे हैं ये लिमिट्स? वर्टिकल स्ट्रिप से। सिंस द ऑर्डर इज डिवाइड बाय dx, so this given limits you will get by considering the vertical strip, या ये जो given limits थे ये उनको vertical strip से मिल रहे थे। So here we have to write y, and then here we have to consider x. So can anyone tell me these limits? बोलो, what is at bottom? What is at bottom? What is at bottom? एक्स। x, then इंफिनिटी। Infinity. 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अभी ये रीजन मुझे ड्रॉ करना है यहाँ से। आप मेरा अप्रोच देखो, मैं क्या करता हूँ, इसके ऑर्डर आइडेंटिफाई करता हूँ, उस ऑर्डर से मैं स्ट्रिप आइडेंटिफाई करता हूँ, स्ट्रिप के लिमिट्स लिखता हूँ, और फिर वहाँ से मैं रीजन ड्रॉ करता हूँ। स्टेप्स देखो आप मेरे क्या, ठीक है। तो मेरा रीजन होगा y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू x, x इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0। सो लेट मी ड्रॉ दिस रीजन नाउ, ठीक है। हाँ। बोलो, y इक्वल टू इन्फिनिटी, ये तो बाद में करते हैं, y इक्वल टू x। अभी आप देखो, बॉटम पे मुझे चाहिए y इक्वल टू x, मतलब ये चाहिए बॉटम पे, और y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ये लाइन होगी ना। अभी ये डॉटेड से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। डॉटेड का मतलब क्या, वो इन्फिनिटी पॉइंट है, जनरली वो नहीं एग्जिस्ट करता, बट अभी यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना होगा। y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ये लाइन होगी। नेक्स्ट क्या है, लेफ्ट पे मुझे चाहिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, y एक्सिस, राइट पे मुझे क्या चाहिए, x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इसी पॉइंट से जाएगा ना वो, करेक्ट और नॉट? x इक्वल टू इन्फिनिटी यही पॉइंट होगा ना, Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है, इसे आपको पता कि ऐसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, जस्ट टू प्लॉट दिस ग्राफ, दिस पॉइंट इज माई इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, एज्यूम करो, ये आपको पता है ये इनफाइनाइट पॉइंट है, तो वैसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, बट अभी के लिए हमें ऐसे जाना होगा। नाउ यू टेल मी व्हाट इज आवर रीजन। अभी रीजन कैसे चाहिए देखना होगा आपको,
रीजन क्या है, बॉटम पे y इक्वल टू एक्स, सो बॉटम पे ये चाहिए, ये पार्ट बॉटम पे, टॉप पे क्या चाहिए, y इक्वल टू इन्फिनिटी, ये चाहिए टॉप पे, सो इन बिटवीन का रीजन लेना होगा, बट वो रीजन इन दैट रीजन वी हैव टू कंसीडर ऑन लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू 0, सो लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा, एंड राइट हैंड साइड x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो राइट हैंड साइड में ये होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका रीजन है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन डिवाइड dx, ये डिवाइड dx का क्वेश्चन है, तो आपको अगर ऑर्डर चेंज करने तो आपको कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करनी होगी, इफ यू वांट टू चेंज दिस ऑर्डर तो आपको कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करनी होगी, टू चेंज इट्स Horizontal. रिप्लेस वर्टिकल स्ट्रिप बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। नाउ जस्ट टेल मी द लिमिट्स, देन विल स्टॉप, एंड नाउ टेल मी लिमिट्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। बोलो, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। टेल मी एक्स हियर, टेल मी एक्स हियर, टेल मी वाई एट बॉटम, टेल मी वाई एट टॉप। बोलो, लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, x इक्वल टू 0, राइट हैंड पे क्या होगा, अभी ये सेम लाइन है, चेंज नहीं हो रही है, सो x इक्वल टू वाई, बॉटम पे क्या होगा, ये पॉइंट, दैट पॉइंट इज y इक्वल टू 0, एंड टॉप पे क्या होगा, टॉप पे infinity, correct? So this given integral can be written as integration e raised to y by y, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो पहले dx से इंटीग्रेट करना है ना, एंड x वैरी फ्रॉम 0 टू y, एंड फिर उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे dy से, वेर y वैरी फ्रॉम 0 टू infinity। ओके, I will take one more example in the next lecture, okay? थोड़ा बहुत आपको अभी ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है, क्योंकि इसमें इतने सारे ग्राफ आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप का दिया है, हॉरिजॉन्टल में कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल का दिया है, वर्टिकल में कर रहा हो, रीजन भी चेंज हो रहे हैं, सो थोड़ा बहुत इनिशियली डिफिकल्ट जाएगा, बट आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करो, आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा। एंड डोंट वरी, एग्जाम में इतने डिफिकल्ट या हाई लेवल के आपको क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, तो ये हम और एडवांस प्रिपेयर कर रहे हैं, बट इससे सिंपली क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, एंड नाउ जस्ट फोकस ऑन ओनली लिमिट्स। इवैल्यूएशन का पार्ट वो अलग ही होगा आपको एग्जाम में, लिमिट्स के ऊपर इस टॉपिक के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रहेंगे, लिमिट्स चेंज करना, मतलब